Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are watching the videos and practicing the sums that we are doing in the video classes. Children, you know that we are doing capacity, measurement of capacity, and this unit I have started few days back, and I have covered almost everything in the chapter. Only word problem is left that we will try to complete in 1 or 2 days. Children, I hope the concept of measurement of capacity is clear to you. What is capacity? What is the standard unit of measuring capacity? What is liquid? And how to add and subtract capacity? All these terms will be clear to you. Children, we have done few questions in word problem also with statements, and some more are left that we will start in today's video. But before that, let's revise what we have done in the previous videos. Children, I have told you about capacity. Capacity means the amount of liquid a container can hold. The maximum amount of liquid a container can hold is called capacity of the container, and the capacity of liquid, in terms of liquid, it is measured in terms of liquid, and liquid is something that flows, something that takes the shape of the container. Children, the standard unit for measuring capacity is liter and milliliter. If the amount is more greater, we use liters, and if it is less, we use milliliter. Children, we needed standard unit of measuring capacity because the random unit or arbitrary unit will give different results. The results will not be same. So, in order to get uniform results, we needed standard unit of measuring capacity. I have told you that we pay according to the weight or mass or length or the capacity of any object. Market में जब हम कुछ खरीदते हैं तो either we pay according to the weight of that object, according to the length of the object or according to the capacity. अब आपको सॉलिड आइटम खरीदते हो, वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह लेते हो, उसका वेट, उसका मास का जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट करते हो. अगर आप क्लॉथ वगैरह ले रहे हो देन यू पे एज पर द लेंथ. मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हमने पढ़ा था. और लिक्विड की कोई चीज लिया तो हम कैपेसिटी लीटर या मिलीलीटर में उसको देखते हैं. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू डू नॉट बाय एज पर द वेट और लेंथ और द कैपेसिटी. ऐसी भी चीजें हैं जो आप नंबर्स के हिसाब से लेते हो. उसमें फिर ये आपका ना मेजरमेंट ऑफ लेंथ होता है, ना मेजरमेंट ऑफ वेट होता है, ना ही मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी होती है. अब आप सोच लो कैसे कौन सी चीजें, हम तो हर चीज तौल कर नाप कर ही हमारे घर में आती है ना. आटा है, गेहूं है, चीनी है, चावल है, सब्जी है, ये सारी चीजें, या दूध है, तेल है, पानी है अगर बॉटल में ले रहे हैं. बट चिल्ड्रन, सर्टेन थिंग्स लाइक स्टेशनरी, आप अगर पेंसिल लेते हो तो आप 1 किलो पेंसिल बोल के नहीं लेते हो, या 1 मीटर पेंसिल लेके नहीं बोलते हो, या 1 लीटर पेंसिल नहीं बोलते हो. Isn't it? You buy as per the number. 5 pencils, 1 packet of pencil, 2 pencils. Same is for erasers or notebooks. You buy according to the numbers. तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आप वेट, लेंथ या कैपेसिटी के हिसाब से ही परचेज करो. बहुत सारी चीजें हैं जो हम नंबर्स से खरीदते हैं. पेन, पेंसिल, बैग, बुक्स, नोटबुक्स. स्पेशली जो स्टेशनरी है वो तो हम नंबर्स के हिसाब से ही लेते हैं. अदरवाइज बैग्स वगैरह है वो भी हम नंबर्स के हिसाब से ही लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम पे करते हैं. पेंसिल का पेमेंट आप करते हो तो क्या उसके लेंथ को मेजर करते हैं कि एक 10 सेंटीमीटर की पेंसिल का इतना पेमेंट करना पड़ेगा और अगर थोड़ा सा ज्यादा है तो और ज्यादा. ऐसा नहीं होता. हम नंबर के हिसाब से 1 पेंसिल का कितना देना है, 2 पेंसिल्स का कितना देना है, या 1 पैकेट क्रेयॉन्स का कितना देना है, तो उसमें हम वेट मेजर नहीं करते या लेंथ मेजर नहीं करते. देन देयर आर सर्टेन फ्रूट्स जिसमें कि नॉर्मली उसका भी वेट के हिसाब से हम नहीं खरीदते हैं. जैसे बनाना. अब बनाना भी नॉर्मली हम नंबर के हिसाब से ले सकते हैं, जैसे डजन बोलते हैं.
आई वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस दिस टर्म ऑल्सो, डजन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं दर्जन, है ना, दर्जन। दर्जन मतलब होता है 12, इंग्लिश में बोलते हैं उसको डजन्स। तो 1 डजन इक्वल्स टू 12। अगर आप 1 डजन बनाना ले रहे हो, इसका मतलब आपको 12 बनाना मिलेंगे। इफ यू आर टेकिंग 1 डजन एग्स, इट मीन्स यू विल गेट 12 एग्स। हाफ डजन मतलब 12 का आधा, हाफ डजन इज हाफ ऑफ 12, 12 का आधा कितना होता है 6, तो हाफ डजन इज 6 इन नंबर and 1 dozen is 12. So there are things that we buy in dozens also. पर आप अब अंगूर का गुच्छा लेने जाओगे तो थोड़ी ना बोलोगे कि मुझे 1 दर्जन अंगूर दो, तो क्या 12 आपको पीसेस ऑफ अंगूर वो देगा, ग्रेप्स? तो ऐसा नहीं है कि हर चीज, देयर आर सर्टन थिंग्स दैट आर परचेज्ड इन नंबर्स, डजन्स में या नंबर्स में हम खरीदते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें मुझे आपको बतानी थी, नहीं तो आपके माइंड में रहेगा कि हम हर चीज को वेट या लेंथ या कैपेसिटी के हिसाब से ही परचेज करते हैं। देयर आर एक्सेप्शंस, बहुत सारी चीजें हैं जो हम वैसे नहीं भी खरीदते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। हमने इस टॉपिक से, वर्ड प्रॉब्लम से 6 क्वेश्चंस हमने किए थे and अभी 5 more are left, so let's start with the 7th question. Okay, 7th question, page number 138 of your maths book. Nakul bought 2 liters 250 milliliters milk on Monday. He bought 1 liter 200 milliliter milk on Tuesday. How much milk did he buy in 2 days? Now, as I have always told you, understand the question. जब तक आपको क्वेश्चन ही समझ में आएगा, you will not be able to solve it. तो क्वेश्चन समझना जरूरी है। इसमें क्या बताएगा कि नकुल है कोई पर्सन, वो मंडे को कुछ अमाउंट क्वांटिटी में मिल्क लेता है और ट्यूसडे को भी कुछ क्वांटिटी में मिल्क खरीदता है। 2 दिन वो मिल्क ले रहा है, मंडे एंड ट्यूसडे। तो आपको बताना है कि ये 2 दिन में, 2 डेज में उसने टोटल कितना मिल्क परचेज किया, ठीक है। फर्स्ट डे जो मंडे है, ही बॉट 2 लीटर्स एंड 250 मिलीलीटर्स ऑन मंडे। ओके, ये मंडे का हो गया क्वांटिटी। ट्यूसडे को उसने 1 लीटर लिया और 200 मिलीलीटर लिया, ये ट्यूसडे का हो गया। अब दोनों दिन का मिलाकर कितना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, वी हैव टू add, yes, we have to add these 2 numbers. We will add liters with liter and milliliters with milliliter. So I will write the question, then I will tell you how to write the statement, and then we will solve it. Okay, let me write the question first. Nakul bought 2 liters 250 milliliter milk on Monday. He bought 1 liter 200 milliliter milk on Tuesday. How much milk did he buy in 2 days? Okay, question I have explained to you already. आपको मैं ये क्वेश्चन समझा चुकी हूँ। अब इसका हम स्टेटमेंट लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये ई लिखा है दैट इज फॉर नकुल, है ना, कि नकुल बॉट 2 liters 250 liters मिल्क ऑन मंडे। मंडे उसने इतना क्वांटिटी का मिल्क खरीदा है
ही बॉट 1 लीटर एंड 100 मिलीलीटर ऑन ट्यूसडे। तो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हो गए, 2 डेज में ना, मंडे एंड ट्यूसडे। तो दोनों दिन का मिलाकर उसने टोटल कितना मिल्क लिया, यही बताना है ना हमें। तो लेट्स राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट, विल राइट सॉल्यूशन। जनरली मैंने आपको बताया था कि हमको स्टेटमेंट क्वेश्चन में से ही मिल जाता है ना। इजी सिंपल सेंटेंसेस हमको क्वेश्चन में से ही मिल जाते हैं। तो चलिए हम लिखेंगे नकुल बॉट मिल्क ऑन मंडे। नकुल bought milk on Monday। कितना दिया मंडे को? 2 लीटर 250 मिलीलीटर। Then he bought milk on Tuesday। ट्यूसडे को कितना लिया? 1 लीटर एंड 200 मिलीलीटर। हाउ मच मिल्क डिड ही बाय इन 2 days? अब यहां पे थोड़ा आपको चेंज करना है। मिल्क बॉट इन 2 days। अब 2 दिनों में कितना दूध खरीदा गया? ये मिल्क बॉट इन 2 days। ही बाय इन 2 days, मिल्क ही बॉट इन 2 days या मिल्क बॉट इन 2 days। तो क्या करेंगे हम इसको? अब ऐड करेंगे 1 लीटर 200 मिलीलीटर। तो इक्वल टू क्या मिलेगा? यहां हमें ऐड करके दिखाना पड़ेगा। 2 लीटर 250 मिलीलीटर, इसमें ऐड करेंगे हम 1 लीटर 200 मिलीलीटर्स। चलिए ऐड कर लेते हैं मिलीलीटर्स को मिलीलीटर्स के साथ और लीटर को लीटर के साथ। 0 plus 0 is 0, 5 plus 0, 5 में 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? We will get 5। 2 plus 2 is 4। तो हो गया हमारा 450 क्या है? मिलीलीटर्स। ठीक है। 2 लीटर प्लस 1 लीटर कितना हो जाएगा? 3 लीटर्स। 3 लीटर्स। ये हो गया हमारा 3 लीटर एंड 450 मिलीलीटर। मतलब नकुल ने मंडे और ट्यूसडे मिलाकर 2 दिन मिलाकर उसने कितना लिया? 3 लीटर्स एंड 450 मिलीलीटर्स मिल्क खरीदा। तो वी विल राइट हियर 3 लीटर्स 450 मिलीलीटर और यहां पर लिखेंगे आंसर 3 लीटर 450 मिलीलीटर मिल्क। ओके, नाउ यू कैन गो थ्रू इट। अब एक बार देख लो सो दैट आई कैन इरेज एंड स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन। अब इसको एक बार आराम से देख लो। Now let's do the next question. Next question is, Mohan has a tin having 2 liters 350 milliliter oil and another tin having 5 liters and 400 milliliter oil. How much oil Mohan has? Let's understand the question. मोहन है कोई और उसके पास एक टिन है जिसमें कि
2 liters and 350 मिलीलीटर ऑयल है। ऑयल का टिन आता है ना, कुकिंग ऑयल का टिन होता है, बड़े बड़े कनस्तर जिसको बोलते हैं, कैनिस्टर भी बोलते हैं, टिन भी बोलते हैं। तो उसके पास जो टिन है उसमें 2 लीटर्स एंड 350 मिलीलीटर ऑयल है। फिर एक और टिन है, मतलब उसके पास टोटल 2 टिन है। एक जो पहला टिन है उसमें 2 लीटर्स 350 मिलीलीटर ऑयल है, और जो दूसरा टिन है उसमें 5 लीटर्स 400 मिलीलीटर ऑयल है। ठीक है, 2 टिन है, दोनों में अलग अलग क्वांटिटी में ऑयल है। क्वेश्चन इज हाउ मच ऑयल मोहन हैज। तो टोटल, कुल मिलाकर टोटल कितना ऑयल है मोहन के पास। तो जब हम टोटल बोलते हैं इसका मतलब है कि हमें ऐड करना है। सो वी हैव टू ऐड हियर द ऑयल्स इन 2 टिन्स। 2 टिन्स जो हैं जिसमें कि अलग अलग क्वांटिटी में ऑयल है, उनको हमें ऐड करना है। दैट इज क्वेश्चन। ओके, आई विल राइट द क्वेश्चन, ओके, सो दैट स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड। Mohan has a tin having 2 liter 350 milliliter oil, and another tin, another मतलब एक और दूसरा, having 5 liter 400 milliliter oil. How much oil Mohan has? Okay. Mohan has a tin having 2 liter 350 milliliter oil, एक टिन ये हो गया। अनदर मतलब एक और, मतलब दूसरा, एक टिन में इतना है, अनदर मतलब एक और या दूसरे टिन में कितना है, 5 liter 400 milliliter oil. हाउ मच ऑयल मोहन है सर, हाउ मच पूछा है, मतलब टोटल मिलाकर कितना ऑयल मोहन के पास है। वी विल राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट। पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट से। मोहन हैज ऑयल इन फर्स्ट टिन, ऐसे भी बोल सकते हैं। मोहन हैज ऑयल इन फर्स्ट टिन इक्वल टू जितना है। ऑयल इन सेकेंड टिन ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप मोहन नहीं भी लिखेंगे देन ऑल्सो यू कैन राइट द स्टेटमेंट। कैसे लिखेंगे, बिना मोहन के नाम का भी आप लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हैं, ऑयल इन फर्स्ट टिन या ऑयल इन 1 टिन। फर्स्ट की जगह पे आप लिख सकते हो ऑयल इन 1 टिन। मैं आपको 2-3 तरीके से बता दे रही हूँ। एक आप हो गया आपका मोहन हैज अ टिन हैविंग ऑयल, जो क्वेश्चन में से आप उतारना है वो कैसे करना है, मोहन हैज अ टिन हैविंग ऑयल इक्वल टू इतना। ठीक है, अनदर टिन हैविंग ऑयल इक्वल टू इतना। टोटल ऑयल मोहन हैज, ये तो क्वेश्चन वाला हो गया। दूसरा तरीका जो है लिखने का वो इस तरह से लिख सकते हैं आप, ऑयल इन 1 टिन इक्वल्स टू जितना है, ऑयल इन अनदर टिन इक्वल्स टू जितना है उतना टोटल ऑयल। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन से कॉपी करना इज मोर इजी तो आप वो भी कर सकते हो, या थोड़ा सा अगर आप सेंटेंस शॉर्ट करना चाहते हो, ऑयल इन 1 टिन ऑयल इन अनदर टिन, ऐसे भी कर सकते हैं। पर क्योंकि आपके लिए ये नया है स्टेटमेंट्स लिखने वाली चीजें, तो चलिए हम क्वेश्चन से उतारने वाला ही आपको पहले बता देते हैं। मतलब मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए हैं। आप चाहो तो शॉर्ट सेंटेंस लिख सकते हो, ऑयल इन 1 टिन ऑयल इन अनदर टिन,
ऐसे, या मोहन के नाम के साथ। मोहन हैज अ टिन हैविंग ऑयल इक्वल टू 2 लीटर 350 मिलीलीटर। ये हमने एग्जैक्टली क्वेश्चन में से उतारा हुआ है। मोहन हैज अ टिन हैविंग ऑयल इक्वल टू कितना, ठीक है। अनदर टिन हैविंग ऑयल, दूसरे टिन में कितना है 5 लीटर 400 मिलीलीटर। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन में से ही उतारा हुआ है। जो मैं दूसरा तरीका बता रही थी उसमें आप कैसे लिखोगे, ऑयल इन 1 टिन इक्वल्स टू 2 लीटर 350 मिलीलीटर, ऑयल इन another tin equals to 5 लीटर 400 मिलीलीटर। देखिए इस तरह से भी हम शॉर्ट स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, पर जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ आपके लिए स्टेटमेंट लिखने वाली चीजें थोड़ी सी न्यू है, तो यू कैन कॉपी फ्रॉम द क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन में से कॉपी करना वाला जो चीज टर्म है वो ज्यादा इजी या यूं कहूँ कि ज्यादा आपको प्रैक्टिस के लिए आपके ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम ऊपर वाले स्टेटमेंट को ही लिख लेते हैं। Now the next sentence is how much oil Mohan has. So total oil Mohan has. कैसे करना है टोटल, 2 लीटर 350 मिलीलीटर प्लस 5 लीटर 400 मिलीलीटर, ठीक है। तो अब इसको हम ऐड करके देखेंगे। यहाँ लिखते हैं 2 लीटर 350 मिलीलीटर, उसमें ऐड करेंगे 5 लीटर 400 मिलीलीटर। नाउ लेट्स ऐड इट। अब इसको ऐड करना शुरू करते हैं। 0 plus 0, 0 plus 0 is 0, 5 plus 0। आपको पता है कि किसी भी नंबर में जब हम 0 ऐड करते हैं तो हमें आंसर में वही नंबर मिल जाता है। तो 5 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर में हमें 5 ही मिलेगा। नाउ 4 plus 3 या बोले 3 plus 4 कितना होगा, 4 plus 3 is 7। यस गुड, ये हो गया हमारे 750। क्या है ये 750 इज ml। नेक्स्ट इज एडिंग लीटर्स। अब लीटर्स को ऐड कर लेते हैं। 5 plus 2, 5 के साथ 2 को ऐड कीजिए, कितना आएगा 7 लीटर्स। आंसर हमारा है 7 लीटर्स 750 मिलीलीटर। तो आप यहाँ पर लिखिए पहले 7 लीटर 750 मिलीलीटर और आंसर में नीचे लिखेंगे 7 लीटर 750 मिलीलीटर ऑयल। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गो थ्रू इट। आपको ऐड करना आता है, डेफिनेटली आता है, लेकिन स्टेटमेंट के साथ ऐड करना है। मिलीलीटर को मिलीलीटर के साथ ऐड करना है और लीटर्स को लीटर्स के साथ ऐड करना है। ओके, चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is
रेहान bought 8 liters 408 milliliter petrol. Ayan bought 5 liters 200 milliliter petrol. How much more petrol did Rehan buy? अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे भी दो लोग हैं, एक है रेहान और दूसरा है अयान। दोनों ने पेट्रोल खरीदा। रेहान ने खरीदा 8 लीटर्स 408 मिलीलीटर, अयान ने खरीदा 5 लीटर्स 200 मिलीलीटर्स। अब ये जो नंबर से ही हमें पता चल रहा है कि किसने ज्यादा खरीदा है। रेहान का 8 लीटर है और अयान का 5 लीटर है, तो 8 इज मोर देन 5। इसका मतलब रेहान ने ज्यादा खरीदा है। गॉट इट? लेकिन आपको ये बताना है कि रेहान ने कितना ज्यादा खरीदा। रेहान ने ज्यादा तो खरीदा है पेट्रोल अयान से, लेकिन कितना ज्यादा, तो ये डिफरेंस आपको पता करना है कि कितना दोनों ने जो पेट्रोल खरीदा उसमें क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, कितने का अंतर है। दैट डिफरेंस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। रेहान bought 8 liters 408 milliliter petrol. Ayan bought 5 liters and 200 ml petrol. Okay, how much more petrol? How much more petrol did Rehan buy? Okay, क्वेश्चन आपको समझ में आ ही चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट हम क्वेश्चन में से लिखते हैं। रेहान बॉट पेट्रोल। कितना? 8 लीटर्स 408 मिलीलीटर्स। ये हमें मिल गया कहां से? क्वेश्चन में से ही मिल गया। ठीक है, रेहान बॉट पेट्रोल इक्वल्स टू 8 लीटर 408 मिलीलीटर। अयान बॉट पेट्रोल इक्वल्स टू 5 लीटर 200 मिलीलीटर। ये भी हमने क्वेश्चन से ले लिया। अयान बॉट पेट्रोल इक्वल्स टू 5 लीटर 200 मिलीलीटर। अब हमें ये पता है कि रेहान ने ज्यादा ही दिया है पेट्रोल, तो कितना ज्यादा? ठीक है, रेहान बॉट मोर पेट्रोल बाय कितना ज्यादा? तो आपको ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करके हमें दिखाना है। 8 लीटर 408 मिलीलीटर है, इसमें से 5 लीटर और 200 मिलीलीटर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई होप ये आपको स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। क्या करना है, देखिए, रेहान बॉट पेट्रोल, उसने रेहान ने कितना पेट्रोल लिया है? 8 लीटर 408 मिलीलीटर। अयान ने कितना लिया? अयान बॉट पेट्रोल 5 लीटर 200 मिलीलीटर। हमें पता है कि रेहान ने ज्यादा लिया है। ठीक है, तो कितना ज्यादा? रेहान बॉट मोर पेट्रोल बाय कितना ज्यादा? 8 लीटर 408 मिलीलीटर में से आपको 5 लीटर 200 मिलीलीटर सब्ट्रैक्ट करना है, आपको डिफरेंस निकालना है ना, अंतर कितना है ये पता करने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए माइनस करते हैं। 8 में से आपको 0 निकालना है, मतलब कुछ नहीं निकालना, तो यू विल गेट 8 ओनली।
away 2. So you will get 2. This is 208 milliliter. Okay. Now you have to take away 5 from 8. 8 में से आपको 5 लेना है. ले लीजिए 5. How much you will get? 3. Yes. 3. So your answer is 3 liter 208 milliliter, and that you will write here. Answer 3 liter 208 milliliter petrol. मतलब रेहान ने पेट्रोल ज्यादा खरीदा है, और कितना ज्यादा खरीदा है? 3 लीटर 208 मिलीलीटर ज्यादा लिया है. ठीक है, 3 लीटर्स 208 मिलीलीटर पेट्रोल रेहान ने ज्यादा खरीदा है. Go through the question. So children, we have done 3 questions today. I hope ये आपको समझ में आ गया है. अभी कुछ क्वेश्चंस और बच गए हैं. दैट वी विल डेफिनेटली डू, बट नॉट इन टुडेज वीडियो. वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. जब तक जो भी आज करवाया है उसको प्रैक्टिस कीजिए. ये आपको सिर्फ समझने के लिए करवाया जाता है बोर्ड पे. ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. टेक हेल्प फ्रॉम द वीडियो, बट डू इट योरसेल्फ, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.